Since the two interfering light waves should have same एम्पलीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड सेम होगा, स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड सेम होगा, तो मैंने कल लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर A1 इक्वल टू A होगा तो कंस्ट्रक्टिव में तुम्हें ब्राइटनेस होगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए तुम्हें डार्क पॉइंट आएंगे, उसके लिए यू शुड हैव सेम एम्पलीट्यूड। यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होगा। So students, when you go for steady interference pattern, students, what are the important conditions to be taken care of? That the two light source should be coherent. That is, the two light source should be monochromatic in nature. The two light sources should be of same amplitude, students. ये जो स्लिट जहां से तुम्हारा लाइट वेव्स आ रहा है ना स्टूडेंट्स, ये जो स्लिट है, या तुम अपर्चर बोलते हो, ये स्लिट है और ये स्लिट है। Students, the slit through which the light is coming, the separation should be very, very small. That means the separation between the two slits, the separation between the two slits must be small in comparison to the distance between the plane condition we consider, the slit and the observatory screen. यानी distance between two slit, यानी ये यहाँ पे तुम्हारा screen है, ये capital D, तो ये ध्यान रखना students, distance between slits should be small in comparison to capital D, distance of slits from screen. Students, capital D क्या है? Distance of screen from the slit. Small d क्या है? Distance between two slits. Students, interference is a phenomena not due to a single wave. Interference is a phenomena not due to a single wave. मुझे दो वेव चाहिए, भले मैंने सोर्स एक लिया है, मैंने यहाँ पे दो पिनहोल बनाया है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों की तरफ से यहाँ पे जो वेव आएगी, तो वो वेव फॉर्म आगे की तरफ जाएगा इन फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट्स, तो इनके बीच में इंटरफेरेंस होगा स्टूडेंट्स। ये देखो यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, और वो इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी फॉर्म्ड, और मुझे स्क्रीन पे मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा, और वो पैटर्न मुझे स्टेडी चाहिए। तो in order to have a steady interference pattern on the screen, what are the important conditions required? That is, the two sources of light should be coherent in nature. The two sources of light should be monochromatic in nature. The two interfering light waves should be of same amplitude. The distance between the two slits should be small in comparison to the distance of the slit from the source. ये जो तुम्हारा स्लिट है ना स्टूडेंट्स, ये जो स्लिट है ना, इसका aperture should be smaller in size. That means the two slits should be narrow. बहुत small aperture होना जरूरी है स्टूडेंट्स. The two slits should be narrow. These are the important conditions required in order to get steady interference pattern. Students, क्या ये clear हुआ? Yes. अगर steady interference pattern चाहिए तो important conditions क्या है? Sir. Yeah. Sir, can you explain that steady interference pattern again? See one thing. First of all, मुझे बताओ, interference is due to what? Is due to two or more waves approaching at a point simultaneously. Agreed? Yes. Can interference due to a single wave or more than one wave? Sir, more than one. तो अगर सपोज, एंड वी आर स्पीकिंग अबाउट लाइट वेव, सपोज अगर मैं दो लाइट वेव्स को सिंगल सोर्स से कैन आई गेट टू लाइट वेव्स? हाँ स्टूडेंट्स, एक सिंगल से कैन आई गेट टू लाइट वेव? कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर मैंने एक सोर्स लिया है स्टूडेंट्स, उसमें तो आई कैन गेट अ लाइट बीम इन दैट केस, उससे तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो मुझे इंटरफेरेंस करने के लिए मैंने क्या किया, सामने एक स्क्रीन रखा। स्टूडेंट्स, देयर आर वेज इन व्हिच यू कैन डू इट। अभी देखो, एक मैंने क्या, अभी मैंने डायग्राम क्या बताया, सपोज अगर मैंने एक रेड सोर्स लिया, प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स, मैंने ये तुम्हें एक रेड सोर्स दिया स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, सामने एक स्क्रीन लिया है, ओके, और यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर मैंने एक नैरो स्लिट बनाया, यानी सी द टू स्लिट्स शुड बी नैरो। ये जो है ना अपर्चर, वो नैरो है। डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज स्मॉल डी। यानी हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से जो लाइट बीम आ रही है, रेड लाइट आ रही है,
वो रेड लाइट यहाँ से पास होगी, वो रेड लाइट यहाँ से पास होगी। अभी मुझे ये बताओ, ये जो मैंने सोर्स लिया है, एवरीबॉडी प्लीज लिसन केयरफुली, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये जो सोर्स है, डोंट यू थिंक सो दैट आई हैव ट्राइड टू कीप द सोर्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू स्लिट्स? हाँ स्टूडेंट्स, अगर मैं देखूं तो ये दोनों इक्विडिस्टेंट है, यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, हाँ या ना? हाँ सर। यानी जो सोर्स तुम्हारा एस है, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, यहाँ पे सोर्स एस है, यहाँ पे रेड लाइट आ रही है, तो यहाँ से मेरी जो लाइट आएगी उसको मैं सोर्स S1 दे देता हूँ, इसको मैं सोर्स S2 दूंगा। अभी मुझे बताओ, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो व्हाट इज डिस्टेंस SS1 एंड SS2? आर दे इक्वल, हाँ या ना? हाँ स्टूडेंट्स, हाँ सर। अगर मैंने बोला कि SS1 का डिस्टेंस SS2 से इक्वल है, तो मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस इन द पाथ बिटवीन द टू लाइट वेव्स अप्रोचिंग एट द टू अपर्चर्स? जीरो बोलोगे कि नहीं बोलोगे तुम? हाँ स्टूडेंट्स, पाथ डिफरेंस जीरो होगा, देयर इज नो डिफरेंस इन पाथ। जितने टाइम में यहाँ से लाइट बीम यहाँ पे आता है, उसी टाइम पे लाइट बीम यहाँ पे आया, तो डिफरेंस इन पाथ इज जीरो। हाँ सर। तो अगर पाथ डिफरेंस जीरो हुआ तो मुझे बताओ ना, फेज डिफरेंस क्या होगा? फेज डिफरेंस क्या होगा? सर ये जीरो डाल दोगे तो 2.20 तो जीरो हो गया, तभी जाके मैंने फॉर्मूला लिखा है। अरे हाँ सर, अगर पाथ डिफरेंस है जीरो है, फेज डिफरेंस जीरो है, उसका मतलब द लाइट विच इज, ध्यान से सुनना, कौन सी लाइट है हमारी? हमारी तो रेड लाइट है स्टूडेंट्स, ये रेड कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट है। जो लाइट यहाँ पे आ रही है, अगर सपोज एक का क्रेस्ट यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से भी दूसरे का भी क्रेस्ट यहाँ पे आएगा, यानी कहने से द टू लाइट बीम्स आर इन सेम phase, so the phase difference can be either zero or remains constant. Such light sources are called coherent. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। यस ये सर। जरूरी है, ये कोहेरेंट होना जरूरी है। अगर कोहेरेंट नहीं होगा तो मुझे यहाँ पे जो पैटर्न मिलेगी ना, जो जो मुझे स्क्रीन पे जो मुझे सर फेज इंटरफेरेंस डिफरेंस अलग पैटर्न आएगा ना? मिलेगी, वो स्टेडी नहीं आएगा। यानी स्टेडी का मतलब क्या? डार्क पूरा डार्क नहीं दिखेगा, ब्राइट पूरा ब्राइट भी नहीं दिखेगा, ब्राइट के अंदर कुछ लाइट शेड्स भी होंगे, या डार्कनेस के अंदर थोड़ा सा लाइट भी होगा। आई वांट पिच डार्क एंड पिच ब्राइट स्टूडेंट्स, यानी इसके लिए ये कंडीशंस। क्या इतना क्लियर हुआ? हाँ सर। दूसरी बात, अगर मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो मुझे दो सोर्सेस की जरूरत तो नहीं है, लेकिन दोनों सोर्स की यहाँ पे लाइट जो आएगी उसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल वेवलेंथ होने की जरूरत है, यानी वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। हाँ सर, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आप यहाँ से ब्लू लाइट लो और यहाँ पे रेड लाइट लो। स्टूडेंट्स, यहाँ से ब्लू लाइट फेंकूंगा, यहाँ से रेड लाइट फेंकूंगा, तो जरूरी नहीं है कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का पिच भी, दोनों का फेज भी सेम होगा, तो यहाँ पे जो पैटर्न मिलेगा मे नॉट बी प्रॉपर। अगर अगर तुम पिगमेंट के हिसाब से लो, कलर पिगमेंट के हिसाब से, तो प्राइमरी कलर तुम्हें पता होगा, स्कूल में पढ़े हो, रेड ब्लू ग्रीन। स्टूडेंट्स, अगर अगर ये वाइट है, आई गेटिंग इट, दिस इज मजेंटा साइन एंड येलो। अगर रेड और ब्लू को मिक्स करोगे तो तुम्हें मजेंटा कलर मिलता है, ब्लू और ग्रीन को मिक्स करोगे तो साइन मिलता है, रेड और ग्रीन को मिक्स करोगे तो येलो मिलेगा। क्या तुम्हें क्लियर डार्क या क्लियर ब्राइट मिलता है? नहीं मिलता है स्टूडेंट्स। ये है कलर ट्राइंगल। अगर चाहो तो लेक्चर्स के बाद में गूगल करना व्हाट एग्जैक्टली कलर ट्राइंगल इज, तो तुम्हें ऐसा डायग्राम आएगा जहाँ पे रेड ब्लू ग्रीन ये प्राइमरी कलर्स है, प्राइमरी पिगमेंट्स है। अगर मैंने रेड ब्लू ग्रीन तीनों को मर्ज कर दिया तो मुझे व्हाइट मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे अगर स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो मुझे मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए। आई डोंट वांट द टू डिफरेंट सोर्सेज इन दैट केस, ऑफ टू डिफरेंट मोनोक्रोमेटिक वी कंसीडर। दूसरी बात, टू इंटेंसिटी द टू इंटरफेरिंग वेव्स शुड बी ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, ये जरूरी है। स्टूडेंट्स, तभी जाके तो मुझे मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या मिला, 4 टाइम्स I0 मिला। क्यों मिला? क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था। और यहाँ पे मुझे एम्पलीट्यूड डार्कनेस के लिए मुझे एम्पलीट्यूड जीरो चाहिए। ये जो पार्ट है ना स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, यानी ये डिस्टेंस, फ्रेंड्स डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स यानी ये डिस्टेंस, ये स्क्रीन है। स्क्रीन को क्या दूरी पर रख रहे हो? कैपिटल बी। स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस है, इट शुड बी स्मॉल इन कंपैरिजन टू डी। दिस विल बी अंडरस्टूड बेटर आफ्टर अ शॉर्ट डेरिवेशन। ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन के ऊपर जाता है स्टूडेंट्स। जब भी मैं डेरिवेशन करूंगा ना, तभी भी ये बताऊंगा मैं
कि अगर मुझे स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, मुझे क्लियर इंटरफेरेंस चाहिए स्टूडेंट्स, तो मेरा डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट शुड बी स्मॉलर इन कंपैरिजन टू दिस। लास्ट वाला मैंने क्या लिया है, the two slit source base should be narrow, यानी ये जो दोनों holes है they should be very very small in comparison to the wavelength of light। क्या ये क्लियर हुआ? Yes. अगर तुमने बड़ा सा होल ले लिया यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत इंटेंस लाइट चली जाएगी, तुम्हारा इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। इंटरफेरेंस के लिए थोड़ा सा तुम्हारा अपर्चर छोटा होना चाहिए। ये सारे कंडीशंस जरूरी है। कॉलेज स्टूडेंट्स, Ask. now please pay attention students। now in order to understand, सबसे पहले in order to understand that from a, क्योंकि तुम्हें तो सोर्स एक ही मिलता है स्टूडेंट्स, तुम्हें मिलता है एक ही सोर्स। अभी एक सोर्स से तुम दो सोर्स कैसे लेके आते हो स्टूडेंट्स? तुम्हारा सोर्स एक ही होता है, एक ही मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है, रेड लाइट एक ही होगी, लेकिन वहां से तुम्हें दो सोर्स कैसे मिलता है? तो मैंने अभी एक दफा बताया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक कार्डबोर्ड रख दो और दो पिनोल करो। लेकिन स्टूडेंट्स वो मेथड इज नॉट टू दैट एक्सटेंट सो प्रॉपर, वो सिर्फ एक एक्सप्लेनेटरी वे ऑफ अप्रोच है। जब भी तुम एक्चुअली इसके एक्सपेरिमेंट करोगे ना स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, इंटरफेरेंस, द एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस इज ऑलवेज डन ऑन एन ऑप्टिकल बेंच। Now let me show you what exactly an optical bench is। ये जब भी तुम्हारे लैब्स वगैरह खुलेंगे ना स्टूडेंट्स कॉलेजेस में, तो शायद वहां पे तुम डार्क रूम में जाओगे। डार्क रूम होता है, हर एक कॉलेज के अंदर एक डार्क रूम होता है, वहां पे लाइट के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और वहां पे तुम्हें ये पता चलेगा। अभी ये ऑप्टिकल बेंच एक्सपेरिमेंट है क्या, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स। ऑप्टिकल बेंच एक्सपेरिमेंट में एक पूरा लॉन्गर प्लेटफॉर्म होता है स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल प्लेटफॉर्म होता है स्टूडेंट्स, जिसका लेंथ होता है फ्रॉम 0 सेंटीमीटर to almost 100 to 150 centimeter long, like 1.5 meter long। Inside it there is a small railing, एक railing टाइप का होता है स्टूडेंट्स, एक रेलिंग होता है स्टूडेंट्स। और ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है ना स्टूडेंट्स, कैलिब्रेटेड है 0 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। नाउ ये जो रेलिंग है उसमें सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पे एक सोर्स आता है। प्लीज लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, ये जो है ये तुम्हारा सोर्स है, प्लीज पे अटेंशन ना। सपोज मैंने रेड लाइट लिया है, तो ये मेरा सोर्स हुआ। लेकिन तुरंत तुम्हें सोचना है, यार सोर्स मेरा एक ही है, इंटरफेरेंस कैसे होगा, मुझे एक में से दो सोर्स चाहिए। तो स्टूडेंट्स वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी क्रिएट, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, how do we create two sources from a given source, and those two sources are called virtual sources। We are trying to get virtual sources S1 and S2 from a given source। वो ऑप्टिकल बेंच के ऊपर है। तो अभी इसके to get S1 S2 what do you do? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस रेलिंग के ऊपर मैंने क्या किया है, एक स्टैंड होता है स्टूडेंट्स, एक मेटालिक स्टैंड होता है। उस मेटालिक स्टैंड के ऊपर मैंने एक बाइप्रिज्म फिक्स किया। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक स्टैंड है, एग्रीड, और इस स्टैंड के ऊपर मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, एक बाइप्रिज्म फिक्स कर दिया। अभी देखो ये बाइप्रिज्म मैंने डाल दिया। स्टूडेंट्स ये बाइप्रिज्म होता क्या है, यानी स्टूडेंट्स ये जो स्टैंड है ना, मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, इट्स अ रेलिंग, आई कैन मूव दिस बाइप्रिज्म टू एंड फ्रो। मैं सोर्स को भी आगे पीछे कर सकता हूँ। तो मैंने सोर्स को कहाँ पे लिया, अज्यूम कर मैंने 0 सेंटीमीटर मार्क पे ले लिया। बाइप्रिज्म कहाँ पे, एक डिस्टेंस पे है। और इसके सामने स्टूडेंट्स, इसके सामने मैंने क्या किया है, इसके सामने मैंने रखा है कॉन्वेक्स लेंस। वो भी कहाँ पे रखा मैंने स्टैंड पे रखा हुआ है। So now I take a stand, and onto the stand I'm keeping a convex lens। Let us say this is the position of lens L1। ये पहले केस में लेंस का पोजीशन ये है। I can move the lens to and fro students, I can move it to and fro क्योंकि वो स्टैंड के ऊपर फिक्स है। यहाँ पे एट द एंड ऑफ इट स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा होता है माइक्रोमीटर आईपीस। ये है मेरा स्क्रीन स्टूडेंट्स, ये है माइक्रोमीटर आईपीस, और यहाँ से मैं देखूंगा पैटर्न को। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा माइक्रोमीटर आईपीस होगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे तुम्हें
पैटर्न दिखाई देगी। पैटर्न कैसे दिखाई देगी स्टूडेंट्स? पैटर्न तुम्हें ऐसे दिखाई देगी स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन। इन दिस माइक्रोमीटर आईपीस you will see a bright light followed by dark, followed by bright, followed by again dark, again bright, again dark. ऐसे पैटर्न दिख रही है स्टूडेंट्स। यानी तुम्हें ऐसे लाइंस दिखाई देगी, ब्राइट डार्क एग्जैक्टली। ये तुम्हारा स्टेरिंग डिफरेंस पैटर्न है, वो यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा और तुम यहाँ पे अपना विजन रखोगे। दिस इज कॉल्ड एज एन ऑप्टिकल बेंच एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स। ये ऑप्टिकल बेंच एक्सपेरिमेंट क्यों बता रहा हूँ स्टूडेंट्स? व्हाट्स द रीजन फॉर यू टू टेल यू इन ऑर्डर टू गेट व्हाट? वर्चुअल सोर्सेस। स्टूडेंट्स मुझे क्या चाहिए? मुझे दो सोर्स चाहिए, मुझे एक सोर्स नहीं चाहिए। इंटरफेरेंस बिकॉज ऑफ टू, लेकिन वो दोनों सोर्स एक ही मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट से होना चाहिए ना। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक बाइप्रिज्म लिया है, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और एक माइक्रोमीटर आईपीस लिया है। सारों को मैंने ऑप्टिकल बेंच पे रख दिया है एंड दे आर ऑल प्लेस्ड कोएक्सियली। कोएक्सियली मींस व्हाट? सबका प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, तुम आगे पीछे कर सकते हो। सर वो थर्ड वाला क्या? ये जो कॉन्वेक्स लेंस है व्हिच इज ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ, ये कॉन्वेक्स लेंस है L1, उसका पोजीशन। सर L1 नहीं, उसके राइट से। ये है माइक्रोमीटर आईपीस, यू कैन सी थ्रू इट, यू हैव टू जस्ट वॉच इट थ्रू इट। ओके, और यहाँ पे तुम्हें एक पैटर्न, ये स्क्रीन है तुम्हारा, जो मैंने स्क्रीन पहले बताया था वो स्क्रीन है, और तुम पीछे देखोगे ना तो स्क्रीन का ये पैटर्न दिखाई देगा फ्रॉम द अदर साइड। ओके नाउ ये क्या है? ये बाइप्रिज्म है। बाइप्रिज्म का मतलब क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट स्टूडेंट्स। उसके भी रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। बाइप्रिज्म इज मेड अप ऑफ व्हाट? यू नो, अगर तुम दो प्रिज्म लेते हो स्टूडेंट्स, इफ आई टेक टू प्रिज्म्स such that two right angle triangles prism students, such that the base angles are equal, and if you merge those two prisms students, अगर तुमने दो राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म लिया और दोनों के बेस को मर्ज कर दिया such that their base angles, so the base angles are either 1 degree or half a degree। फिर मुझे बताओ, अगर ये 1 डिग्री हुआ, ये 1 डिग्री हुआ, तो ये कितना होगा? 178 डिग्री। अगर ये हाफ डिग्री हुआ, तो कहने से दिस विल बी 179 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ बाइप्रिज्म, सिंपल ग्लास प्रिज्म। यानी स्टूडेंट्स बाइप्रिज्म है क्या? तो तुम लोगों से बाइप्रिज्म इज सिंपली थिन स्लैब ऑफ ग्लास। सोचिए स्टूडेंट्स, 179 डिग्रीज का मतलब क्या? तुम बोलोगे सर ये सरफेस और ये सरफेस ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। जब भी तुम बाइप्रिज्म लेते हो और सपोज तुमने लेंस लिया है स्टूडेंट्स, तो वी कैन इजीली गेट कोहेरेंट सोर्सेज ओवर हियर, यू कैन गेट सिंपल कोहेरेंट सोर्सेज ओवर हियर। हाउ डू वी गेट इट? लेट अस अंडरस्टैंड दैट पार्ट। Now please pay attention students, please pay attention students. Now I'm going for only concept of biprism. ये तुम्हारा मेन सोर्स एस था, this is your biprism students. Think as if this is your screen. Okay students, यहाँ से जो लाइट सोर्स है ये ऊपर की तरफ जा रही है और ये लाइट सोर्स यहाँ पे जा रहा है। ये लाइट सोर्स एक्सट्रीम पे गए, ये लाइट सोर्स यहाँ पे गए। I have shown this particular rays of light with different arrows. Students ध्यान से सुनना, यही बाइप्रिज्म का मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये तुम्हारा पॉइंट सोर्स एस है, एक नहीं जा रहा है जो एग्जिस पे टच हो रहा है, दूसरा थोड़ा सेंट्रल में। मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, जो रेज एग्जिस पे है उनका रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? डू दे हैव टू ट्रैवल अ लॉन्गर लेंथ ऑफ द ग्लास और अ वेरी शॉर्टर लेंथ? तो तुम क्या बोलोगे? टोटल। शॉर्टर लेंथ। सर यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन बहुत कम होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो रे होगा वो ऑलमोस्ट पैरेलल जाएगा। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये सिंगल एरो, ये सिंगल एरो, ये भी पैरेलल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्राइक हो रहा है वो लॉन्गर डिस्टेंस कवर करेगा इनसाइड, तो सर यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे कम रिफ्रैक्शन है, यहाँ पे ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे भी ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा। और ये लाइट रे अभी ऐसे जाएंगे। अभी देखो, दोनों लाइट वेव इस तरफ गए तो उनका एक पैटर्न क्रिएट हुआ स्टूडेंट्स। यहाँ पे तुम्हारा इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाएगा, इस पोर्शन में तुम्हारा इंटरफेरेंस आना शुरू हो जाएगा। दिस इज अ रीजन वेयर इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। Now students, what am I trying to do? Now I'll try to take the two light rays backward. Students ध्यान से देखना, ये जो रे आगे जा रहा था स्टूडेंट्स, अगर इसी को मैं एग्जैक्टली पीछे लूं,
ये लाइट रखो एग्जैक्टली मैं पीछे लो, यहाँ पे ये लाइट रखो अगर मैं पीछे लेता हूँ, ये लाइट रखो मैं पीछे लेता हूँ। स्टूडेंट्स, डोंट यू थिंक सो आई एम गेटिंग S1 and S2? Virtual source. Yes, these are the two virtual sources, students. ये आ गए virtual sources, है ना? Do they fall exactly on the straight line with us? Yes. This is how to get two sources. So तभी जाके मैंने बोला कि हमें हमें चाहिए दो सोर्स। अभी देखो यहाँ पे अगर कुछ इंटेंसिटी चेंज होता है, यहाँ पे इसका कलर, यहाँ फेस चेंज, एनी चेंज इन फेस for a given source, identically there will be same change in phase with S1 and S2 also, of course. तो जब भी हमें इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ना है ना स्टूडेंट्स, तो ऑलवेज वी हैव टू गो फॉर व्हाट? Virtual sources S1 and S2, students, and both these virtual sources should be coherent. The two light sources which should be coming from there should be monochromatic in nature. They should be of same amplitude. They should be of small, narrow in size. The slit should be narrow in size. क्या ये पार्ट क्लियर हुआ? Yes. और ये ऑप्टिकल बेंच का हम सपोर्ट लेंगे टू अंडरस्टैंड योर डायफ्रैक्शन पार्ट. That is what an optical bench looks like. So an optical bench is what? Consisting of a source, a biprism, a lens, and a micrometer eyepiece. All of them are placed coaxially. You can make these objects to move to and fro, and we can get a pattern. This is what a pattern is. This is an interference pattern over here. You see bright line, dark line, bright line, dark line, and all of them are falling at equal distances from each other. And it's a steady interference pattern. Is it clear, students? क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ अभी? No. 1 minute. Yeah. Sir, what is the name of the experiment? This is a biprism experiment, students. In order to obtain, the name of the experiment is biprism experiment in order to obtain two virtual sources. क्या मैं erase कर सकता हूँ student? हाँ sir.
Okay, so now we go for an experiment so called as your Young's double slit experiment. At times जब तुम solve भी करोगे ना problems तो वो लिखते हैं YSD, YDS sorry, Young's double slit experiment. Again, a double slit that means two sources S1 and S2 which are coherent to understand interference pattern. यहाँ पे हम समझेंगे students where exactly a dark and bright fringe is formed. Now let us understand this very clearly, students. Okay, to understand this, students, what am I trying to go for? It is let me consider source as S, students. Okay. This is what a screen I'm putting it. This is point O. Now I'm placing two sources, students, S1 and S2. अभी देखो अगर मैं यहाँ पे मैं S1 S2 दिखा भी देता हूँ तो उसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि S1 S2 होगा क्या तो बोले सर this S1 S2 are called as virtual sources and they have a very small narrow aperture. Students इनका aperture बहुत ही छोटा है. These are two sources you consider. Is it on the perpendicular bisector? Yes. If you carefully look into it, students, if S lies on the perpendicular bisector of S1, S2, then point O also will lie on the perpendicular bisector of S1, S2. क्या ये clear हुआ, students? हाँ, students? Sir. Yes, sir. So all the points on the segment S1 are equidistant from S1 and S2. हाँ, ये तुम्हारा screen है, ये point O है. यानी तुम्हारा जो लाइट वेव जो तुम्हारा S1 और S2 से जो लाइट आएगा पॉइंट O की तरफ, जहां से सुना स्टूडेंट्स पॉइंट O पे आएगा तो उनका देखो पाथ सेम है. स्टूडेंट्स यहाँ पे पाथ सेम है पॉइंट O पे, यानी पॉइंट O पे पाथ डिफरेंस क्या होगा? 0. फेस डिफरेंस क्या होगा? 0. तो यहाँ पे हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? पॉइंट O पे हमेशा क्या मिलेगा? तो ये तुम्हें हमेशा मिलेगा सेंट्रली ब्राइट फ्रिंज, CBF. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको? We call this as centrally bright fringe. ये हमेशा तुम्हें सेंट्रली ब्राइट पॉइंट ही मिलेगा. कभी भी किसी ने पूछा व्हाट इज पॉइंट O तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? सेंट्रली ब्राइट पॉइंट, क्योंकि पार्ट डिफरेंस सेम है यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे. लेकिन अगर मैंने कोई पॉइंट P यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर यहाँ से जो लाइट ये आ रही है और यहाँ से जो लाइट आ रही है सर इनका तो पाथ सेम है, लेकिन अभी यहाँ से जो लाइट P की तरफ जाएगी और यहाँ से जो लाइट P की तरफ जाएगी सर इनके बीच में तो पाथ सेम नहीं है. देयर इज डिफरेंस इन पाथ. यानी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. in time t when when S1 just moves outside, at the same time S2 can reach over here. स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो डोंट यू थिंक सो ये S1 और यहाँ पे अगर मैं पॉइंट A लिख दूं तो ये क्या बन गया? मेरा वेव फ्रंट बन गया. अब परपेंडिकुलर ड्रॉन वो क्या बन गया? वेव नॉर्मल बन गया. यानी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, लाइट मूव फ्रॉम S to S1 इन टाइम स्मॉल t. एग्जैक्टली उसी टाइम में यहाँ से लाइट S2 पे आती है. लेकिन in time small t when light from S1 just starts emerging out, by that time light from S2 already has covered some distance. तो स्टूडेंट्स ये हुआ ना तुम्हारा डिफरेंस इन पाथ, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट फ्रॉम सोर्स S2. ये तुम्हारा पाथ डिफरेंस है स्टूडेंट्स.
And this path difference you can simply consider in terms of what? Delta x we consider. ये तुम्हारा path difference is students. That is delta x, which can be written in terms of lambda. I can consider ये तुम्हारा path difference होगा. क्या ये clear हुआ students? This is different in path. ये तुम्हारा difference in path हो जाएगा. Let us say that the angle which it forms over here, ये तुम्हारा कौन सा angle होगा सर? ये तुम्हारा angle formed by the wavefront with the vertical we consider. The distance between two sources मैंने क्या लिया students? Let us take the distance between the two sources students as small d, जो मैंने पहले भी बताया था. Distance of the source from the screen students, let me take it as capital D. Now we are trying to find out what? At point P, am I going to get a maxima, minima? कैसे find out करते हैं? वो वाला part. How do we go about with this? So what I do students, यहाँ से मैं construct करता हूँ students, एक line I'm trying to draw perpendicular onto the screen. Exactly from here also I'm trying to draw perpendicular onto the screen. ये पूरा distance दिए तो students can I say this is d by 2, this is d by 2. Now suppose if I say take a point P over here, what is the distance of point P? Listen carefully students, what is the distance of point P from point O? I can consider in this case. So ये क्या होगा students? If in case if I happen to consider, I can take the distances accordingly. अगर suppose मैंने इसको y ले लिया students, I get it? तो ये distance क्या होगा? Sir, this will be y minus d by 2. यहाँ पे suppose अगर मैं point m लेता हूँ, ये point n लेता हूँ, तो can you tell me what is this distance students? y plus d by 2. क्या ये clear हुआ? Point P is at a distance y from the centrally bright fringe. Distance of point M from S1, distance of point S from N from S2 is what? Is equal to capital D. ये D और ये D. Is this much clear to all of you? Yes, sir. Hope the diagram is very, very clear, students. We are trying to understand at what distance, in this Young's double slit experiment, students, we are trying to find out at what distance I can get a bright fringe or a dark fringe, a bright band or a dark band. तो हमने क्या किया, पॉइंट ओ तो यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टिव ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट पी या तो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है या डिस्ट्रक्टिव, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? पार्ट डिफरेंस के ऊपर डिपेंड होगा. अगर स्टूडेंट्स तुम्हें पार्ट डिफरेंस एन लैम्बडा मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव है, अगर एन माइनस हाफ लैम्बडा मिला तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा. बस तुम्हें वही देखना है. अभी इसका हम एक डेरिवेशन लेते हैं कि क्या डिस्टेंस पे तुम्हें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मिलता है. तो सबसे पहले वी ट्राई टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम सेंट्रल. हाउ डू यू गो अबाउट विद दैट? So let us go for this. Friends, to get this derivation, what you'll do now? You try to go for two right angle triangles, friends. एक हम right angle triangle छोटा वाला लेते हैं और दूसरा हम बड़ा वाला लेते हैं, friends. That means PM S1 and PN S2 students. ये जो distance है, students, ये जो PM है, ये है y minus d by 2. ये जो PN है, ये है y plus d by 2. This distance we consider as capital D. Now suppose students, if I happen to use theorem of Pythagoras over here, so can I say S1P the whole square क्या होगा? You will say, sir, it is d square plus y minus d by 2 the whole square. What is S2P the whole square, students, in this right angle triangle? तुम बोलोगे सर यहाँ पे d square होगा plus y plus d by 2 the whole square होगा. क्या ये clear हुआ students? दोनों equation theorem of Pythagoras? Yes, sir. ना अगर तुम देखोगे स्टूडेंट्स, मुझे बताओ कौन सा पाथ ग्रेटर है, तो तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है. सर देखो ना, ये डिस्टेंस ज्यादा है, इससे ये डिस्टेंस है, तो देयर इज अ डिफरेंस इन पाथ, है ना स्टूडेंट्स? मुझे पाथ डिफरेंस के हिसाब से मुझे पता करना है कि मुझे ब्राइट या डार्क मिलेगा, तो मैं डेल्टा एक्स के बारे में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स. डेल्टा एक्स कैसे मिलेगा मुझे? लेट अस गो फॉर दिस. तो देखो मैं क्या करूंगा, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट्स और ये सेकंड इक्वेशन है, लेट मी सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट वन, सॉरी फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड वन. तो क्या होगा स्टूडेंट्स? S2P the whole square minus S1P the whole square. Agreed? इसको इसमें से सबट्रैक्ट कर दिया. तो स्टूडेंट्स अगर इसको इसमें से सबट्रैक्ट किया तो ये माइनस डी स्क्वायर होगा, तो सर ये तो डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. Agreed? Just hold on, I'm getting a call from Bits. Just hold on, please. Hello?
Very sorry, students. Today is the last round for JOSA students. JOSA का last round है for admissions and withdrawal from BITS also. Okay, students. अभी ध्यान से सुनो students. So which admission? हाँ, आज जोसा का लास्ट राउंड है ना स्टूडेंट्स फॉर आईआईटी का एडमिशंस. वो IIT होगा. हाँ, आईआईटी का एडमिशंस का लास्ट राउंड और बिट्स के अंदर जिसको निकलना है तो उसके लिए भी है करके, बिकॉज जोसा का आज लास्ट डे था करके, तो जिसको आईआईटी में मिल रहा है वो अगर जाना चाहता है तो जा सकता है और बिट्स छोड़ के जा सकता है. इट्स लाइक दैट. इट्स ऑल मेस्ड अप. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो, इसको इसमें से सबट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स. S2P द होल स्क्वायर माइनस S1P, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. अभी आई हैव टू सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो कैन आई से दिस इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. तो क्या होगा स्टूडेंट्स? A प्लस B A माइनस B. हाँ स्टूडेंट्स, ये क्या होगा? S2P माइनस S1P, S2P प्लस S1P. ये कैंसिल हो गया. यहाँ पे क्या आ गया? 2y. ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स इनटू 2d/2. Therefore, can I say S2P minus S1P is equal to 2y small d upon S2P plus S1P. क्या ये क्लियर हुआ सबको? कैलकुलेशन स्टूडेंट्स, सिंपल मैथ्स Yes. है ना? यानी स्टूडेंट्स मुझे चाहिए क्या? मुझे पार्ट डिफरेंस से पता चलेगा ना कि मुझे ब्राइट मिलेगा, डार्क मिलेगा, और उसका डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं. अभी मुझे बताओ, जब भी तुम इंटरफेरेंस, अभी मैंने डायग्राम बनाया था स्टूडेंट्स, मैंने जब इंटरफेरेंस का डायग्राम बनाया था, तो डिड यू सी द लाइंस स्टूडेंट्स? डिड यू सी द लाइंस? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सपोज अगर यहाँ पे मैं अगर उसी के डायग्राम को मैं हॉरिजॉन्टली देता हूँ स्टूडेंट्स, तो डिड यू सी द लाइंस? वर द लाइंस वेरी क्लोज टू ईच अदर or very far away? They were very close. Between two dark lines there was a bright line students. तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, of course स्टूडेंट्स, पॉइंट P को हम अज्यूम करते हैं स्टूडेंट्स, इट्स वेरी क्लोज टू पॉइंट O. यानी point P is very close to O, so indirectly M is also close to O, N is also close to O. तो स्टूडेंट्स हमने किया क्या मालूम है? यहाँ पे जो लिखा है ना मैंने S2P plus S1P, स्टूडेंट्स S2P और S1P को मैं क्या लिखता हूँ? S2P I will write on nearly equal to S1P और इसको मैं लिखूंगा कैपिटल D. स्टूडेंट्स, ये दोनों को मैं कैपिटल D लिख सकता हूँ. देखो वापस बोल रहा हूँ मैं, S1P और S2P को मैंने क्या लिखा? कैपिटल D. अगर कोई स्टूडेंट पूछेगा सर क्यों, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न तुम जब स्क्रीन पे देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो ये जो लाइंस है ना स्टूडेंट्स, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो तुरंत स्टूडेंट बोलेगा सर उसका मतलब जब ये आप प्रॉब्लम्स हमें दोगे तो क्या ये है कि सेंट्रल से कोई भी अगर मैं पॉइंट यहाँ पे लूं तो उसका डिस्टेंस बहुत कम होगा? हाँ, कम होगा. उसका मतलब सर उसका डिस्टेंस 10⁻³ में भी आ सकता है, क्यों नहीं? 10⁻⁴ में भी आ सकता है, क्यों नहीं? इतना शॉर्टर डिस्टेंस है. यस. Students, when you're solving problems, you'll actually come across what is the distance of the bright band from the centrally. It can be of the order 10⁻², 10⁻³ also, students. That is why S1P, S2P मैंने nearly equal to क्या ले लिया? कैपिटल D. जैसे मैं इसको कैपिटल D लिखूंगा तो कहना से 2y small d upon 2 कैपिटल D आएगा. 2 and 2 will get cancelled. Now students, ये देखो, ये based on small assumptions. हाँ, ये assumption मैंने क्या किया? That point P is not far away from point O. Now when you look into it, am I getting the formula for capital Y? अरे हाँ सर, capital Y का formula क्या मिला? हाँ सर, before going capital Y, am I getting S2P minus S1P? हाँ सर, ये तो part difference है. That is equal to what? Y small d upon capital D. What is this? This is part difference, delta X. S2P is greater than S1P, students. S2P is greater than S1P. By how much? By delta X. Is that your part difference? Yes. So now can you give me what is the formula for Y from centrally bright band? तो Y को सब्जेक्ट बना दो. तो Y क्या होगा? सर Y का फॉर्मूला होगा Y is equal to delta X capital B by small d. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स. हाँ सर. Distance of a fringe. ये क्या है? Distance of a fringe from centrally bright. अभी तुम्हें ये बोलना है कि डार्क है कि ब्राइट है, वो कैसे पता चलेगा?
सर आपने बता दिया ना पहले डेल्टा एक्स, आपने लेक्चर शुरू होने से पहले आपने डेल्टा एक्स बता दिया, इसलिए आपने जानबूझ के वहां, फिर मैंने जानबूझ के कंस्ट्रक्टिव इंटर डिस्ट्रक्टिव क्यों लिखा वापस? शुरुआत में वापस मैंने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की यहाँ पे भी मैं यूज करूंगा। ओ यानी सर आप ये बोलना चाहते हो कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो तुम्हारा पार्ट डिफरेंस एन लैम्बडा आएगा, तो तुम्हारा y का फॉर्मूला क्या होगा? एन लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो समझ में आया? अच्छा सर, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो मेरा पार्ट डिफरेंस को मैं क्या लूंगा? हाँ सर, 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 या 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2। तो वो क्या होगा सर? 2n माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल बाई स्मॉल डी। अरे दिस इज हाउ आई कैन गेट माय आंसर फॉर डिस्टेंस। स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. So now if somebody asks you students, what are the distance? Students, what are the distance? If in case if I happen to consider with a positive sign, students, we can go for a positive sign also. Students, distance of a bright. Okay, so distance अगर suppose मैंने delta x को n लैम्बडा, तो ये मेरा y n होगा। तो delta x क्या होगा students? n lambda capital D by small d. y n complement अगर लिखूंगा ना, तो 12 minus 1 lambda capital D by 2। ये तुम्हारे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला क्या बताता है? ये फॉर्मूला बताता है डिस्टेंस ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ अ ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंट्रली ब्राइट और सेंट्रली ब्राइट फ्रिंज। y n कॉम्प्लीमेंट क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ डार्क फ्रिंज और डिस्टेंस ऑफ अ डार्क बैंड फ्रॉम सेंट्रली ब्राइट बैंड। यू कैन टेक 2n plus 1 also, doesn't matter. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. हाँ. नाउ देखो इसके प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं स्टूडेंट्स। अभी 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 हाँ चलो, बिफोर गोइंग फॉर दिस स्टूडेंट्स, एक फैक्टर मैंने बोला था, मुझे मुझे स्टूडेंट्स मुझे बताओ, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए क्या मुझे ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, डू आई वांट दिस फ्रिंजेस टू बी वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर और दे शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर टू सी द पैटर्न मोर क्लियरली? Very close. है ना, वेरी क्लोज टू ईच अदर। उसका मतलब my distance of this point from the centrally bright band should be what we consider in this case, should be proper in that case, यानी ये तुम्हारा एक distinct होगा, y is equal to n lambda capital D by d we consider, जिसको हम बोलते हैं bandwidth। Friends, जितना तुम्हारा distance बढ़ेगा उतना तुम्हारा bandwidth बढ़ेगा, जितना तुम्हारा size कम होगा what happens, उतना उतना distance of the bright fringe from the central will go on increasing। यानी यहाँ पे तो पता चल रहा है students, your y depends on small d, your y depends on capital D। Since your d should be very small, the distance between the two sources should be very small in comparison to d. That's why at times the screen is placed 1 meter or more than 1 meter also. And जब भी तुम problem solve करोगे ना students, तो ये capital D तुम्हें 100 centimeter होगा, 120 centimeter भी होगा। It's like that. The distance between two slits, no? Can I erase this? Sir, 1 minute. The distance between two slits, no, that should be less than. Yes. क्या मैं erase कर सकता हूँ students? Sir, what is CBF? Centrally bright band, centrally bright fringe. These are lines. You can consider as a band or a fringe. Done. Yeah. कर दो erase? हाँ, sir. Okay.
Okay, students. Now suppose if I happen to go for what kind of questions can be put forward? Students, अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर point P यहाँ पे है, okay, from centrally bright band or centrally bright fringe, okay, and S1 and S2 are two sources. Distance is D. This is capital D. So students, distance of a bright fringe from a centrally bright will be n lambda capital D by small d. Distance of dark will be considered to be as what? 2n minus 1 lambda capital D by 2d. You can consider 2n plus 1 also. So it's, am I getting it? Now when you consider in this manner, students, अगर suppose मैंने पूछा what is the distance? Answer देना students. What is the distance? अगर मैंने यहाँ पे बोला 10th bright, distance between 10th bright and 15th bright on the same side of a centrally bright band. तो मैंने क्या पूछा? So what will do? Sir, हम यानी उसका मतलब distance between 10th bright and 15th यानी ये और ये. Friends, तो क्या करूंगा मैं? y15 minus y10 निकालूंगा. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ब्राइट के लिए पूछा तो तुम क्या करोगे? सर यहाँ पे 15 आएगा, लैम्डा डी बाई टी तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा? 15 minus 10. Agreed? Students, is this clear? यानी when I try to find out the distance on the same side, students always go for difference. अगर suppose मैंने पूछा students find out the distance of 8th dark and 7th dark on the same side. Students, 8th dark and 7th dark on the same side. तो y8 complement यानी तुम्हारा n is 8 students. तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा students? 8 to the 16. देखो lambda d by d यहाँ पे भी कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा? 8 to the 16, 16 minus 1, 15 by 2 minus 7 to the 14, 14 minus 1, 13 by 2. Can you now solve the distance between these two? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Also. यानी अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछेगा ऑन द सेम साइड, अगर सपोज मैंने पूछा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 20th ब्राइट ऑन वन साइड एंड 5th डार्क ऑन द अदर साइड. सिंस 20th ब्राइट यहाँ पे 5th डार्क, तो ये ऑपोजिट साइड हुआ ना, तो ऑपोजिट साइड में क्या होगा? सर ऑपोजिट साइड यानी डिस्टेंस बिटवीन 20th ब्राइट, तो y20 इस तरफ 5th है, ऐड करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एडिशन होगा. And if I want to find out the distance of the two bands on opposite side of centrally, then go for addition. On the same side, go for subtraction. Is this clear to all of you? Yes. Now, n to 20 lena, n to 5 lena, depending on to what exactly the band is given to you, whether it's dark or bright. The next we consider is, students, if somebody asks you what exactly bandwidth, या तुम बोलते हो fringe width. At times, when you look into students, it's given by variable beta or W. Since bandwidth or fringe width, ये क्या है students? Bandwidth or fringe width is actually distance between consecutive bright bands or consecutive dark bands. Distance between consecutive bright band or distance between consecutive dark band is called as bandwidth or fringe width. Now we are trying to go for formula for bandwidth or fringe width. का formula इसको कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? तो तुरंत बोलोगे सर आपने बोला डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड और कंसेक्यूटिव डार्क. अभी सपोज मेरा पहला ब्राइट बैंड एंड है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, इसके कंसेक्यूटिव वाला सपोज अगर मैं n+1 लूं, कंसेक्यूटिव n-1 भी आ सकता है स्टूडेंट्स. ये भी कंसेक्यूटिव हुआ, ये भी कंसेक्यूटिव हुआ, हम लोग ये लेते हैं. तो क्या बोला डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव, यानी मैंने क्या किया स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, yn+1 में से yn निकाल दिया. तो व्हाट्स माय फार्मूला? सर ये तुम्हारा फार्मूला है, n लैम्डा डी बाई डी. एग्री? Is it clear? हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा? सर यहाँ पे ऐसा करता हूँ, लैम्डा डी बाई डी में बाहर निकाल दूंगा, अंदर क्या आएगा? सर इसमें से इसको सेपरेट करना है, n+1 minus n, n will get cancelled. What's my answer? लैम्डा डी बाई स्मॉल डी. स्टूडेंट्स यानी अगर मैं कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड लूं तो मेरा आंसर क्या आता है? लैम्डा डी बाई डी.
जितना डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज छोटा होगा उतना बैंडविड्थ तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर्ली दिखाई देगा स्टूडेंट्स. The distance between two consecutive bright band or two consecutive dark band is always given by the formula lambda capital D by small d. The distance between the screen and the source should be very large in order to have a proper bandwidth. अभी suppose if I have to go for dark one, तो dark one के लिए क्या करोगे? Dark one के लिए क्या करोगे? So उसके लिए भी आंसर सेम ही आएगा. अभी ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. Put n as n plus 1 in the first case. The answer is students bandwidth of fringe width will be what? So lambda d by d आप बाहर निकाल दो. ब्रैकेट में ये n की जगह पे क्या लिखोगे? n plus 1. So twice n plus 1 minus 1. Agreed? By 2 minus. Now simply n. Total exactly consider 2n minus 1 by 2. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्या ये समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes. डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव डार्क दिया है स्टूडेंट्स. तो देखो लैम्बडा डी बाई 2b मैंने बाहर निकाल दिया. ब्रैकेट में क्या आ रहा है सर? ये होगा 2n प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2n प्लस 1. सर ये इससे कैंसिल होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा. सर ये 2 इससे कैंसिल होगा. यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ रहा है देखा स्टूडेंट्स? ओ यानी सर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क or distance between two consecutive bright all the time remains the same. Yes. Students, distance between two consecutive dark band, two consecutive bright band, or two consecutive dark fringes, or two consecutive bright fringes is all the time remaining same, and that is what we call bandwidth of fringe width. So bandwidth of fringe width के जब ये formulas आए ना students, so directly lambda capital D by small d. Distance of a bright fringe from the centrally, तो ये formula. Distance of a dark from centrally, ये formula. Distance to be found on the same side between two bright, two dark, one bright, to always go for difference. Higher minus the smaller. Distance on the opposite side of two bright, two dark, one bright on opposite side. Always go for addition. क्या ये clear हुआ students? हाँ. Yes, sir. Can I erase this students? One minute. वेद ये जॉइंट एसोसिएशन है, तुम्हारे एडवांस के बेसिस के रैंकिंग के ऊपर तुम्हारा एडमिशन ये डिसाइड करता है. ओके भाई, तुम्हें सिर्फ कॉलेजेस के नाम डालने हैं एंड एट द एंड ऑफ 5th राउंड तुम्हारा श्योर शॉट एडमिशन हो जाता है, प्रोवाइडेड यू क्वालिफाई फॉर एडवांस. अगर तुम्हारा रैंक क्वालिफाइंग रैंक के अंदर आता है which is again around less than 12,000 और of 2.5 lakh, 12,000 के अंदर अगर तेरा रैंक आता है तो probably you can get a seat in any of the IITs. वो जोसा कंट्रोल करता है. तुम्हारे NITs में भी एडमिशन चाहिए तो वो जोसा कंट्रोल करेगा. You have to go via जोसा. Sir, what is Josh? It's a joint association for admissions. ये तुम्हारे एडमिशन प्रोसेसेस के लिए. आफ्टर योर एडवांस गेट्स ओवर, रिजल्ट्स आर बीन आउट. रिजल्ट्स आने के बाद में तुम्हें जोसा का ऑनलाइन एप्लीकेशंस तुम्हें डालना होता है, रजिस्टर अपने आप को रजिस्टर करना है. और ये ऑल ओवर इंडिया का यही है, जोसा ही है जो पूरा एडमिशंस देखता है. और तुम्हारे रैंकिंग के हिसाब से तुम्हें तुम्हारी चॉइसेस की फील्ड के अंदर तुम्हारे चॉइसेस ऑफ कॉलेजेस के हिसाब से तुम्हें अपना लिस्टिंग देना है. तुम चाहो तो सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम दे सकते हो. 100 होते हैं, 150 इंस्टीट्यूट के नाम दे दो. उसमें से फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड में हमेशा अपग्रेड होता है. और तुम एक फाइनल राउंड में आते हो, वहां पे तुम्हें कंफर्म करना पड़ता है और तुम्हारी सीट तुम्हें लॉक करनी पड़ती है. पहले केस में तुम्हारा फ्लोटिंग होता है सीट सारे. अभी तुम फाइनल राउंड में आते हो, वहां पे तुम्हारा आज का दिन लॉकिंग का था कि आज तुम्हें तुम्हारी सीट लॉक कर देनी है.
क्योंकि इसके बाद में कोई राउंड्स नहीं है। अगर आज बच्चे ने नहीं लॉक किया, वो घूमने गया है, उसने ईमेल नहीं देखा तो गया। Okay, sure. Can I erase this now? इसको erase कर No, दो। no, last part. और बिटसैट तो अकॉर्डिंग टू मी जो भी जेई के लिए जाते हैं ना स्टूडेंट्स, जेई के लिए जाते हैं, एडवांस के लिए जाते हैं स्टूडेंट्स, ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर बिटसैट की एग्जाम्स दो स्टूडेंट्स। उसको अवॉइड मत करना। हाँ वो बात है कि वहाँ की तो फीस कभी होते हैं? हाँ सर वो कभी एग्जाम है वेबसाइट का? बिटसैट की अभी शायद आएगी तुम्हारा मे बी इन द मंथ ऑफ मार्च या अप्रैल के अंदर ही होगी स्टूडेंट्स। उसके तुम्हें मिलेंगे, you will come to know about it। और उसका मिस जरा भी मत करना स्टूडेंट्स। हाँ वो बात है कि थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि वहाँ पे कोटा सिस्टम नहीं है, यानी वहाँ पे वो सब स्टूडेंट कोटा सिस्टम में ऐसा है कि आईआईटी में स्टूडेंट्स, आईआईटी में बच्चे को 20 मार्क मिला है, ध्यान से सुनना, आउट ऑफ 360 जेई एडवांस किया पेपर 1 पेपर 2 में 20 मार्क। शेड्यूल टाइप का है, रैंक क्या है उसका, कहाँ पे एडमिशन लिया है, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, फर्स्ट 5 में बोलो। और जिस बंदे को 120 मिला है उसका रैंक क्या है, 11,500, जनरल कैटेगरी। सी द डिफरेंस ऑफ कोटा सिस्टम। ये है कोटा सिस्टम का। बिट्स में कोटा सिस्टम नहीं है, यानी वहां पे ये सब शेड्यूल ट्राइब्स वाले को अलाउ ही नहीं है। वो कंप्लीट मेरिट के ऊपर स्टूडेंट्स, पूरा मेरिट के ऊपर। तुम मार्क्स लेके आओ तो डिजर्व करो वहां पे जाने का, मार्क्स नहीं ले आओगे तो तुम्हें गेट के खड़े भी नहीं रखेंगे, बाहर निकाल देंगे। दैट इज व्हाट इट इज। तो उसके इसलिए फॉर्म कभी भरने हैं? हाँ उसके फॉर्म सभी आएंगे, तुम पूछना कर इस पे शायद अविनाश को वगैरह तुम्हारे जो सेंटर हेड सभी उनको पता होगा स्टूडेंट्स। सर वो बताते क्या? हाँ यार अपडेट्स आएंगे तुम्हें, डोंट वरी अबाउट दैट, विल गेट द अपडेट्स। It's only one thing is that you have to be strong in your English language। English language भी आता है स्टूडेंट्स इसमें। Friends, can I erase this? Erase कर दो अभी। यस। Okay, students. Now suppose if I try to say students, this is S1 and S2 are the two sources, okay, at a distance d apart। ये तुम्हारा screen है। This is centrally bright band students। Now if I say that I'm getting a fringe at point P due to interference of two light source। But now students, suppose if I say अगर मैंने सोर्स S1 या S2 के सामने एक स्लैब ऑफ ग्लास डाल दिया या अ शीट ऑफ माइका डाल दिया, यानी आई एम ट्राइंग टू प्लेस अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लिया, ओके, एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस ले लिया, ओके, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जिसका थिकनेस टी है, और उसको मैंने S1 के सामने रखा है स्टूडेंट्स, S1 के सामने रखा। तो मुझे ये बताओ, क्या ये जो पहले फ्रिंज पैटर्न P यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, क्या ये पॉइंट P वही फॉर्म होगा इंटरफेरेंस के बाद में? क्या मुझे फ्रिंज पैटर्न P पे मिलेगा, या मेरा पॉइंट जो फ्रिंज पैटर्न है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा या ऊपर की तरफ टेक होगा या वहीं रहेगा? यानी सर देयर इज अ शिफ्ट। हाँ बोलो। सर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा स्टूडेंट्स।
you will find out that the pattern shifts. Fringe pattern shifts upwards. फ्रेंड्स ये ध्यान में रखना, जब भी तुमने स्लैब को S1 के सामने रखा ना, fringe pattern shift upwards when slab is placed on upper side S1. अगर मैंने यहाँ पे रखा तो fringe pattern नीचे की तरफ आता है. अभी how to give the mathematical relation to this? Students, अगर मैं बोलूँ करके the optical path difference क्या होगा यहाँ पे? अगर मैं बोलूँ what exactly the optical path difference, students, तो तुम्हारा optical path difference because it shifts ना, है ना? ये तुम्हारा ऐसे जाएगा, ये तुम्हारा ऐसे जाएगा. There's a difference in the optical path, students. So what is the optical path difference over here will be? So the optical path difference will be delta x, and that optical path difference is given by the formula mu minus 1 into thickness. Students, it's a refractive index. It's the refractivity of the transparent medium into the thickness of the slab. That is the optical path difference. Now, if I say is S2P dash, क्योंकि यहाँ पे आ गया, is S2P dash is greater than S1P dash? Yes. So now what exactly S2P dash minus S1P dash is equal to what? What's the formula we got it as? So we got the formula difference in path is y lambda. I getting it? By capital T we consider in this case. I getting it? So y small d upon capital V I got it, students. ये पार्ट डिफरेंस में क्या मिला? ये तुम्हारा S2P, ये क्या है तुम्हारा स्टूडेंट्स? इट्स S2P dash minus S1P dash. Can I put this as mu minus 1 into t? Yes. So what is the distance? Y क्या बन जाएगा? Sir, it's mu minus 1 t capital D upon small d. ये तुम्हारा होगा distance of the fringe from the centrally bright band when a slab of refractive index mu and thickness is placed in front of it. यानी स्टूडेंट्स जब भी मैं ये स्लैब रखूं नहीं तो मेरा पैटर्न पी पे आ रहा था, तो उस टाइम पे मेरा फॉर्मूला क्या था? y का. उस टाइम पे मेरा फॉर्मूला क्या था? y का. सो y का फॉर्मूला व्हाट एग्जैक्टली इट वाज लैम्डा, सॉरी, y इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा x एग्रीगेट लैम्डा कैपिटल d बाय स्मॉल d था. स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला था कि ना, जहां पे तुम डेल्टा x d बाय d यानी डेल्टा x को n लैम्डा में लिख सकते हो 2n - 1. ये तुम्हारा एक फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें ध्यान से मालूम हो तो पहले मैंने बता दिया. ये किसके लिए स्टूडेंट्स? ये है डिस्टेंस ऑफ ईदर अ ब्राइट और अ डार्क फ्रॉम सेंट्रली ब्राइट बैंड व्हेन देयर वाज नो स्लैब प्लेस्ड. लेकिन जैसे मैंने स्लैब डाल दिया तो मेरा पाथ डिफरेंस देखो चेंज हो गया, क्या आ गया? u - 1 into t. यानी सर स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, जब भी वो स्लैब के बारे में कोई एमसीक्यू दे देना तो ये फॉर्मूला यूज करना. हाँ, अगर वो पूछे शिफ्ट किस तरफ है, तो अगर मैंने स्लैब ऊपर की तरफ रखा तो इट्स गोइंग टू गो इन द अपर डायरेक्शन. नीचे की तरफ रखा तो इट्स गोइंग टू गो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. दोनों के लिए रखा स्टूडेंट्स, दोनों के लिए रखा, तो फाइंड आउट S1P and S2P separately in that case and then subtract greater minus smaller. अगर तुम्हें नेगेटिव डायरेक्शन में मिला, नेगेटिव आंसर मिला तो नीचे की तरफ गया, पॉजिटिव आंसर मिला तो ऊपर की तरफ गया. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? No, sir. इरेज कर दूं? No, sir. ओके. बेड साइड के अंदर अगर स्टूडेंट्स तुम्हें किसी भी हाल में अगर 320 के ऊपर मिलता है, स्टूडेंट्स 330 340 के आसपास मिलता है, 330 40 के ऊपर पकड़ो, 340 प्लस, और उसका मार्क्स होता है 460 450 460 के आसपास. The students you can get into computer science either in Hyderabad or in Goa or in BITS Pilani, that's Rajasthan. And mind you, BITS ka position is at on the 6th position after first 5 IITs. Bombay, Madras, Kharagpur, Nagpur वाला है,
6 पोजीशन पे तुम्हारा ये बिट्स आता है। लेकिन वहाँ पे इंग्लिश होता है, इंग्लिश के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है students। और जो जेई मेंस का तैयारी करता है ना स्टूडेंट्स अच्छी तरह से, वो डेफिनेटली बिट्स को अच्छी तरह से क्रैक कर सकते हैं। Without doing English, the answer is students. Without doing English, students are scoring 306. सोचो 300 से ऊपर तो क्रॉस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ मेंस वाले स्टूडेंट्स जो सिंसियरली करते हैं। यस, सर और एनआईटी के लिए? एनआईटीज के लिए तो ये तुम्हारा है ना, तुम्हारा जेई जेई है, जेई काफी है तुम्हारा एनआईटीज। लेकिन जोसा के थ्रू भी तुम जा सकते हो, जोसा के थ्रू ही जाना होता है। लेकिन एनआईटीज के लिए तुम्हारा रैंकिंग सही होना चाहिए। ऑलमोस्ट तुम्हें 99.5 से ऊपर अगर तुम परसेंटाइल लेके आते हो तो तुम्हें एनआईटी त्रिची या एनआईटी वारंगल मिल सकता है। यस, यस नॉर्मन। लेकिन प्लेसमेंट काफी अच्छा है स्टूडेंट्स, लेकिन फीस भी काफी अच्छी है वहाँ पे, पूरे साल भर की अलॉन्ग विद एडमिशन फीस एंड मेस का फीस मिला के स्टूडेंट 5.5 लाख मिनिमम, 5.5 सर lakhs कहाँ पे? बिट्स में। फीस उसका बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है। द रीजन इज व्हाई स्टूडेंट्स, फर्क क्या मालूम है, ये ध्यान में रखना। सिंपल, आई एम सॉरी टू यूज योर टाइम इन दैट केस। एनआईटी, आईआईटी और बिट्स के अंदर स्टूडेंट्स, एनआईटी में क्या हो रहा है मालूम है, एनआईटी में ज्यादा करके 50% पढ़ने वाले होते हैं, 50% नहीं पढ़ने वाले होते हैं स्टूडेंट्स। और मैक्सिमम यहाँ पे वो जो ओबीसी वाले कास्ट वाले वैसे घुस आते हैं वहाँ पे। उससे होता क्या मालूम है, उनको मार्क्स तो कम मिल जाते हैं। अभी जो बंदा फाइनल एग्जामिनेशन में ही कम मार्क्स लेके आ जाता है, वो वहाँ पे इंजीनियरिंग कैसे क्रैक करेगा? स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ये है यहाँ पे। तुम आईआईटी में जाओगे तो आईआईटी में जब तक तुम फर्स्ट 10 आईआईटी में लोगे, गांधीनगर या भुवनेश्वर तक तुम जाते हो तब तक सही है। उसमें भी तुम कोर ब्रांचेस में जाते हो तब तक सही है। सीएस में जाते हो तब तक बहुत सही है। लेकिन उसके साथ में अगर तुम लोअर ब्रांचेस में चले गए तो वहां पे 70% पढ़ने वाले 30% वो वापस निठल्ले होते हैं। और यहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम पढ़ने वाले मिलेंगे। और यहाँ पे कोई ओबीसी वाला नहीं, कोई शेड्यूल कास्ट वाला नहीं, कोई शेड्यूल ट्राइब वाला नहीं, कोई कम मार्क्स वाला भी नहीं ना, क्योंकि कम मार्क्स आएगा तो उसको एडमिशन ही नहीं है, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होना जरूरी है, और दूसरे सारे पढ़ने वाले भी हैं। तो यहाँ पे हेल्थी कंपटीशन है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे टीचर्स का बहुत सपोर्ट है। यानी यू शुड हैव एवरीथिंग ओपन। और इसके बाद में तुम्हारा सीईटी, everything should be kept open. So you can't have a block for everything, anything in it. सर पर एनआईटी के लिए 150 to 200 मार्क्स लगते हैं, सर देखा था। In my dear, 150 to 200 marks, so hardly you will be scoring percentile, my dear. नहीं possible है, my dear. Percentile कहाँ से आएगा? हाँ, प्रोवाइडेड तेरा पेपर टफ रहेगा तो उसमें तेरे को परसेंटाइल आ सकता है। सुन, 99.5 परसेंटाइल से ऊपर होगा तो तुम पहले 3 एनआईटी में देख सकते हो। एनआईटी त्रिची सीएस, एनआईटी वारंगल, सूरतकल, ये 3 फर्स्ट, चौथा राउरकेला, ये 4 एनआईटीज है स्टूडेंट जो सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे तुम अगर पहले दूसरे तीसरे में सीएस मिलता है तो काफी है, यहाँ पे भी सीएस मिलता है काफी है। पहले में तुम इलेक्ट्रिकल तक के लिए जा सकते हो तो सेकेंड इलेक्ट्रिकल, इसके बाद में जाने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू गो फॉर दैट, इट्स उसके लिए यू कांट, उसका मतलब नहीं है, प्लेसमेंट है ही नहीं फिर। फ्रेंड्स, क्या इरेज कर दूं मैं इसको? हाँ Friends, just the last part now, the diffraction part of it. Friends, what exactly diffraction is? Anybody can tell me what is diffraction, friends? Since diffraction is what,
So it's actually bending of light. Around edges or corners or apertures. Corners of apertures. Since bending of line around edges or corners of aperture, bending of light around edges of obstacle or corners of aperture and size of obstacle or aperture is comparable to wavelength of incident light is called diffraction. Since diffraction का मतलब क्या है? Bending of light around edges of optical or corners of aperture students. और ये कभी होगा? This takes place, I can put in this manner, when size of obstacle or aperture is comparable to wavelength of incident light. तो ही diffraction होगा, नहीं तो diffraction नहीं होगा. Students, अगर मैं पूछूं क्या sound diffraction का property दिखाता है? हाँ. क्या light भी दिखाता है? क्यों नहीं? Students, diffraction का मतलब क्या है? अभी देखो, let us understand with respect to sound. Students, diffraction and sound का मतलब क्या है? Sound जहाँ पे नहीं जाना था, वहाँ पे sound चला गया. For example, somebody into your home at a certain far distance into the drawing room is listening to music. तुम शायद थोड़ा सा एक लॉन्ग पैसेज है तुम्हारे घर में और तुम तुम्हारा बेडरूम में कहाँ पे अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा दरवाजा रूम का थोड़ा सा खुला हुआ है. यानी क्या हो गया? साइज ऑफ अपर्चर, एजेस ऑफ ऑब्स्टिकल और कॉर्नर्स ऑफ अपर्चर, यानी तुम्हारा जो जो गैप है ना डोर का, वो बहुत ही छोटा है, वो खुला रह गया. तो अगर सपोज देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस अराउंड यू, शायद तुम्हें वो ड्राइंग रूम का सॉन्ग तुम्हें वहां पे सुनाई देगा. क्योंकि क्या होता है, साउंड विल गो एंड हिट एट एजेस एंड कॉर्नर्स एंड विल ट्राई टू एंटर, it will try to enter into a region of prohibition. Students, जहां पे साउंड को नहीं जाना था वहां पे साउंड चला गया है. That is what we call as diffraction. Exactly same kind of things you have it in what? Diffraction of light. जहां पे लाइट को नहीं जाना था वहां पे चली गई है. Take a simple example, students. Take a simple example. Suppose if in case if you see, suppose अगर मैंने एक white screen लिया students, एक मैं screen लेता हूँ students, एक white paper लेता हूँ, okay? और मैंने क्या लिया, मैंने दो ब्लेड्स लिए students. I've taken two razor blades. I don't know about it whether you've seen razor blades properly. दो razor blades ले रहा हूँ students, शायद ऐसे टाइप की शेविंग ब्लेड्स होती है वो. Okay? अगर तुम दो रेजर ब्लेड देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो उनका रेजर ब्लेड्स का एजेस तुम देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो बहुत ही शार्पन्ड होता है. ये दोनों का एजेस है स्टूडेंट्स, और इनके बीच में मैंने एक छोटा सा गैप रखा है. बहुत शार्प एजेस है स्टूडेंट्स, और ये एक्सपेरिमेंट में डार्क रूम में करता हूँ. दोनों ब्लेड्स को मैंने इस पेपर के ऊपर रखा है एट अ सर्टेन डिस्टेंस. फिर मैं क्या करूँ, इसके ऊपर लाइट मैंने डाल दी. तो व्हाट डू यू सी? तो बोलेगा सर जैसे आपने लाइट डाली तो सेंटर में क्या हो रहा है? सेंटर में देयर इज व्हाट? देयर इज अ गैप. तो व्हाट डू यू सी? विल यू सी एनी लाइट ओवर हियर स्टूडेंट्स? So will you be able to see the light over here? Yes. Friends, जब भी तुम लाइट यहाँ पे फोर्स करोगे तो you will see some light over here. But will you see light on either side? सर वहां पे भी दिखाई देगा.
अगर तुमने ये पूरा ब्लॉक कर दिया विद डार्क पेपर, यहाँ पे तुमने ब्लैक पेपर लगा दिया स्टूडेंट्स, और इसको तुमने यहाँ पे रखा, तो यू विल गेट अ सेंट्रली तुम्हें एक ब्राइट लाइट, तो इस सेंटर में तुम्हें एक ब्राइट लाइट दिखेगी, और पूरा एक्सपेरिमेंट तुम डार्क रूम में कर रहे हो। अब पर्सन विल से, अगर सपोज मैंने ये 2 प्लेट्स को यहाँ पे रख दिया और इसको मैंने एक ब्लैक पेपर से कवर किया, इसको मैंने ब्लैक पेपर से कवर किया है, लेकिन बीच में एक स्मॉल गैप है, तो मुझे यहाँ पे एक ब्राइट लाइट मिलेगी। लेकिन क्या ईदर साइड विल आई गेट एनी लाइट? यस, यू विल गेट ओवर देयर आल्सो। यानी उसका मतलब हुआ क्या सर, वहां पे लाइट नहीं जानी चाहिए थी, क्योंकि ये तो पूरा ब्लैक पेपर से कवर था और मैं एक्सपेरिमेंट डार्क रूम में कर रहा हूँ। तो लाइट गई कैसे वहां पे? बिकॉज ऑफ डायफ्रैक्शन, because the size of the aperture, students, the size of the aperture was very small in comparison to the wavelength of incident light. यानी तुम्हें central portion में तुम्हें bright light दिख रही है. What happens to the brightness? So the brightness of light will certainly, intensity उसका goes on decreasing. The intensity will certainly go on decreasing as you go away. As you go away, what happens? Intensity goes on decreasing, students. This is what we call as diffraction. So diffraction का मतलब क्या? Bending of light around edges or corners of obstacle or aperture. Kabhi, when the size of the obstacle or aperture is always in comparison to the wavelength of incident light, तो ही diffraction होगा. One more example of this diffraction, students. If I happen to consider this, think as if this is a screen. यहाँ पे मेरा एक source है, students. अगर मैंने light source लिया तो देखो यहाँ पे मुझे light आ रही है, यहाँ पे light आ रही है. Suppose if I'm taking the source of light from here, am I getting it? तो देखो ये पूरा तुम्हारा ओपेक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ये ओपेक है, तो यहाँ पे मुझे इंटेंसिटी नहीं मिल रही है, लेकिन इस स्क्रीन में स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे लाइट मिलेगी, यस, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे डार्कनेस होगा. अभी मैंने क्या किया है, सपोज अगर ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को मैंने बहुत छोटा बना दिया स्टूडेंट्स, इज इन कंपैरिजन टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो देखो एम आई गेटिंग द लाइट नाउ? हाँ सर, आप देखोगे तो लाइट आएगी. यानी स्टूडेंट देखो, जहां पे लाइट नहीं जानी चाहिए थी वहां पे लाइट पहुंच गई. यानी अभी इतना सा पोर्शन तुम्हें डार्क दिखाई देगा, बाकी यहाँ पे भी लाइट होगी, यहाँ पे भी लाइट होगी. यानी वी हैव मेड लाइट टू एंटर इनटू अ रीजन ऑफ प्रोहिबिशन स्टूडेंट्स, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? डायफ्रैक्शन. सो डायफ्रैक्शन का मतलब स्टूडेंट्स, इट्स बेंडिंग ऑफ लाइट रेज अराउंड एजेस एंड कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल और अपर्चर when the size of the obstacle or the aperture is comparable to the wavelength of incident light. This is important. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट? सबसे पहले चलो सेकंड वाला स्टेटमेंट नहीं समझा, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज कंपैरेबल टू. अरे मुझे साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल, चलो मुझे बताओ व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट? कौन सी लाइट के बारे में बात कर रहे हो तुम? विजिबल लाइट के बारे में बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ स्टूडेंट्स, हाँ तो वेवलेंथ कितना होना चाहिए? उसका 4000 एंगस्ट्रॉम होता है स्टूडेंट्स, टू 8000 एंगस्ट्रॉम. हाँ है ना, वायलेट टू रेड. हाँ तो अगर तुम मीटर में लिखोगे तो कितना होगा? 10⁻⁷ मीटर. एग्रीड? यस अगर सपोज तुमने दो ब्लेड्स लिए और दो ब्लेड्स के बीच में तुमने डिस्टेंस 1 मिलीमीटर का रखा या 0.1 मिलीमीटर का रखा, तो कहने से दिस इज ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁴ मीटर, क्लोजिंग टू 10⁻⁷ मीटर. समझ में आ रहा है? ये है when the size of the aperture and the obstacle is comparable to the wavelength of incident light, almost coming closer to it, वहां पे तुम्हें diffraction. ओके. Are you getting it? That is what it means. Can I erase this, students? डन सर. Okay. Now when we speak about diffraction, students, हमें diffraction के लिए क्या चाहिए? One minute students, ध्यान से सुनना students, हमें diffraction के लिए हमें plane wavefront की जरूरत होती है. कौन सा wavefront? Plane wavefront. लेकिन तुम्हें दिया है मैंने सोर्स, जो पॉइंट सोर्स है, और तुम एक्सपेरिमेंट करते हो तुम्हारे लैब के अंदर. स्टूडेंट्स कुछ समझ में आ रहा है? मैंने तुम्हें दिया है पॉइंट सोर्स और तुम परफॉर्म कर रहे हो एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर, और मुझे पॉइंट सोर्स से मुझे प्लेन वेवफ्रंट चाहिए और तुम लैब के अंदर कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, और वो भी तुम ऑप्टिकल बेंच के ऊपर कर रहे हो. चलो ना, वो भी मैंने दे दिया. ऑप्टिकल बेंच का लेंथ कितना होता है सर?
तुम बोलोगे सर 150 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर यानी 1.5 मीटर. Students, is that 1.5 meter is a very large distance? Students, मुझे ये बताओ, जब भी मैंने बताया था पॉइंट सोर्स होगा तो उसके लिए वेव फ्रंट कैसे होते हैं? प्लेन वेव फ्रंट होते हैं, स्फेरिकल होते हैं? हाँ स्टूडेंट्स, स्फेरिकल होते हैं. तो मुझे प्लेन वेव फ्रंट के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? स्क्रीन शुड बी एट व्हाट डिस्टेंस? शॉर्टर डिस्टेंस और वेरी फार डिस्टेंस? Very fast. तो एग्जाम्पल मैंने दिया था सन एंड योर आई. लेकिन यहाँ पे तो फाइनाइट डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स. अगर तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम लैब में कर रहे हो, तुमने लिया है पॉइंट सोर्स, लेकिन तुम्हें प्लेन वेव फ्रंट चाहिए, तो हाउ डू यू गेट इट? हाउ डू यू गेट दैट पर्टिकुलर प्लेन वेव फ्रंट? तो क्या करोगे? तो तुम बोलोगे सर अगर प्लेन वेव फ्रंट चाहिए तो व्हाट शुड आई गो फॉर? सर आई शुड गो फॉर अ, if I'm taking a point source, I will try to go for a convex lens of suitable focal length. तभी जाके स्टूडेंट्स मैंने ऑप्टिकल बेंच के अंदर मैंने कॉन्वेक्स लेंस भी रखा हुआ था. अभी देखो, अगर सपोज मैंने सोर्स को यहाँ पे लिया स्टूडेंट्स, आई प्लेस सोर्स एट द फोकस, और एक मैंने सूटेबल लेंस ले लिया, ये तुम्हारा स्क्रीन है स्टूडेंट्स. तो व्हाट्स गोना हैपन? द लाइट व्हिच इज एमिटेड फ्रॉम द सोर्स स्टूडेंट्स, हाउ एग्जैक्टली, ये देखो, ये लाइट रे हिट हो गई, ये लाइट रे हिट हो रही है, ये लाइट रे हिट हो रही है. स्टूडेंट्स, हाउ आर दीस रेज आर गोइंग टू गो? कैन इट गोइंग टू गो पैरेलल? Where is the source? Students, where is the source? The source is placed at the focus of the given point. Now look, can you see this wavefront? देखो ये सारे वेव नॉर्मल है. सपोज अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ A, यहाँ पे लेता हूँ पॉइंट B, यहाँ पे लेता हूँ पॉइंट C, अज्यूम करता हूँ A B C मेरे प्राइमरी सोर्स है. तो स्टूडेंट्स यहाँ से कैन आई ड्रॉ अ वेवलेंथ ऑफ डिस्टेंस? कैन आई ड्रॉ वेवलेंथ ऑफ अ डिस्टेंस? कैन आई ड्रॉ वेवलेंथ ऑफ अ डिस्टेंस? है ना स्टूडेंट्स, C इंटू टी. तो इसका मैं टैंजेंट ड्रॉ करूंगा तो क्या बन गया? अरे सर ये तो प्लेन वेव फ्रंट हुआ, है ना. और ये जो नॉर्मल जा रहा है वो क्या बन गया? अरे सर ये तो वेव नॉर्मल हुआ जो इसका डायरेक्शन दिखाएगा. अरे दिस इज हाउ वी कैन गेट प्लेन वेव फ्रंट. यस. यानी स्टूडेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, ध्यान से सुनना, सोर्स तुम्हारा पॉइंट सोर्स है. पॉइंट सोर्स क्या है? तुम्हारा पॉइंट सोर्स है. डिस्टेंस क्या है? फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम स्क्रीन, ऑफ सोर्स फ्रॉम स्क्रीन. किसका सपोर्ट लोगे टू गेट प्लेन वेव फ्रंट? स्टूडेंट्स, टू गेट प्लेन वेव फ्रंट Convex. यूज कॉन्वेक्स लेंस. ये ध्यान में रखना. डायफ्रैक्शन को समझने के लिए हम ये कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, दैट्स ऑल. अब मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग थिन लाइट बीम स्टूडेंट्स, आई एम मेकिंग इट टू पास थ्रू अ पर्टिकुलर अपर्चर. अभी ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी है. This is my entire slit, students. I'm dividing the slit into two parts, A, B, and B, C, students. What kind of waveframes are entering inside of here, students? These are plane wavefront. These are the light waves which are entering inside, students. अभी जो यहाँ पे फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगा? सर ये तो हमेशा सेंट्रली ब्राइट होगा, यानी ये क्या होगा? इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा. स्टूडेंट्स इसको हमेशा हम बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा, ये ध्यान में रखना. वहां पे जब भी फ्रिंजेस था स्टूडेंट्स, अभी लाइन था, वो सेंट्रल फ्रिंज था, सेंट्रली ब्राइट फ्रिंज, ये सेंट्रल मैक्सिमा. यानी तुम्हें एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिखेगी वहां पे, कुछ थिकनेस दिखेगा यहाँ पे. लेकिन इस तरफ और इस तरफ क्या होंगे? तुम्हें तुम्हें ब्राइटनेस भी मिलेगा, डार्कनेस भी मिलेगा. यानी क्या हो रहा है? डायफ्रैक्शन हो रहा है. नाउ सी ओवर हियर, आई हैव अ लेंस ओवर हियर, आई एम प्लेसिंग अ लेंस ओवर हियर. एग्रीड. जो लाइट रे यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, जो लाइट रेज यहाँ पे फॉल होंगे वो तो क्या होगा? हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा होगा. लेकिन कुछ लाइट रेज यहाँ पे भी होंगे. सपोज इफ आई हैपन टू गो फॉर, यहाँ पे आने के बाद में लाइट रे डायफ्रैक्ट होगा, वो यहाँ पे पहुंचेगा. कुछ लाइट रे सीधे जाएंगे, कुछ लाइट रे विल गो इन दिस मैनर एंड दे विल रीच. तो जैसे यहाँ पे जाएंगे स्टूडेंट्स, दे विल ट्राई टू चेंज दिस पाथ आल्सो. यानी स्टूडेंट्स हो क्या रहा है मालूम है स्टूडेंट्स? Diffraction takes place over here and over here. यानी each part of this particular aperture I have divided into certain parts. अभी देखो यहाँ पे मैंने पूरे aperture को मैंने दो parts में divide किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया स्टूडेंट्स. अगर मैं यहाँ से अगर मैं इनका पार्ट डिफरेंस के बारे में बात करूंगा ना स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, अगर मैं पार्ट डिफरेंस के बारे में बात करूंगा तो ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर, ये क्या एंगल होगा स्टूडेंट्स? दिस एंगल इज कॉल्ड डाइफ्रैक्टिंग एंगल.
What does this we consider? ये तुम्हारा पाथ डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस है तुम्हारा पाथ डिफरेंस. What is sin theta? Students, sin theta is equal to opposite. What is sin theta? I can consider students is equal to opposite, that is delta x upon hypotenuse. What is hypotenuse? So distance of the slit. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये क्या है? थीटा स्टूडेंट्स, ये डायफ्रैक्टिंग एंगल है. साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज साइन थीटा? डेल्टा एक्स बाय. अभी देखो डेल्टा एक्स क्या, अगर सपोज तुम यू गो फॉर टू पॉसिबिलिटीज. Since you go for two possibilities, suppose if I divide my slit into two equal parts, I'm going to get destructive interference, and I'm going to get my diffraction pattern, which is going to give me which is going to give me minimum. If I divide the slit into two parts, slit into even parts, कितना parts? अगर मैं स्लिट को इवन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो हमेशा मुझे मिनिमम मिलेगा. यानी ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी मैक्सिमा. तो यहाँ पे मैंने क्या किया स्टूडेंट्स? स्लिट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मच? ऑड पार्ट्स. So whenever you try to go for delta x, students, अगर तुम्हारा delta x जो पार्ट डिफरेंस है students, if the part difference is 2n plus 1 lambda by 2d, then this is going to give me constructive interference. ध्यान से सुनना यहाँ पे, लेकिन पैटर्न on screen will be formation of maxima. ये मैक्सिमा का कंडीशन आ जाएगा. स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है? एजेस के ऊपर डायफ्रैक्शन हो रहा है. एजेस के ऊपर डायफ्रैक्शन हो रहा है बिकॉज बेंडिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट अराउंड एजेस एंड कॉर्नर्स. इंटरफेरेंस यहाँ पे होगा वेव का. जो पैटर्न जो मिलेगा ना वो इस फॉर्म में होगा. यानी कैसे होगा पैटर्न मालूम है स्टूडेंट्स? तुम्हें वेव फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि ये साइनसॉइडल वेव फॉर्म है. ये देखो, ये ब्राइट लाइट होगी स्टूडेंट्स, उसके बाद तुम्हें डार्क मिलेगा, वापस ब्राइट. दिस इज हाउ इट इज. और ब्राइटनेस कम होती जाएगी. अगर तुम्हें ध्यान से मालूम है मैंने क्या बोला था, दो ब्लेड्स को अगर साथ में रखोगे स्टूडेंट तो सेंट्रल तुम्हें एक ब्राइट लाइट मिलेगी. डू यू गेट लाइट ऑन ईदर साइड? यस. लाइट वहां पे नहीं जाना चाहिए था, वो प्रोहिबिटेड रीजन था, लेकिन फिर भी लाइट चली गई. लेकिन क्या इंटेंसिटी सेम था? नहीं सर, इंटेंसिटी कम होते जा रहा था. तो ये वेव का इंटेंसिटी ज्यादा है. जैसे तुम जो जाकर देखो इंटेंसिटी कम होगी और कम होगी और कम होगी. ये है तुम्हारा पैटर्न ऑफ डायफ्रैक्शन. ये जो सेंट्रल में फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा. ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा. ये क्या है? फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा. वापस तुम देखोगे कर्व तो ये क्या है? ये कर्व क्या है? सेकेंडरी मैक्सिमा. इसके बाद वाला क्या है? सेकेंडरी मिनिमा. यानी स्टूडेंट्स यू विल गेट मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑल्टरनेटली प्लेस्ड. हमेशा तुम्हें मैक्सिमा और मिनिमा हमेशा ऑल्टरनेटली प्लेस्ड होगा स्टूडेंट्स, वन आफ्टर अनदर ऑल द टाइम विल बी गेटिंग इट. तो देखो सेंट्रल मैक्सिमा ये तुम्हारा क्या होगा सर? ये है जो जो मैं जो ये बता रहा हूँ, ये क्या है सर? ये है तुम्हारा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा. ये जो पार्ट है वो क्या होगा? पीक वाला. ये होगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा. ये पार्ट वापस सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा. गेटिंग इट? ये फर्स्ट सेकेंडरी स्टूडेंट्स, सॉरी ये सेकेंड सेकेंडरी है. ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ना, उसके बाद में ये आएगा, ये सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा. ये सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये थर्ड secondary minima. It's like that, and the pattern will go on either side. Path difference for maxima is 2n plus 1 lambda by d, and path difference, if I happen to write down in terms of what? N lambda will be for destructive interference, and pattern on screen will be minima. Now अगर तुम्हें जनरल फॉर्मूला चाहिए तो स्टूडेंट्स आंसर देखो स्टूडेंट्स. व्हाट एग्जैक्टली डेल्टा एक्स आई एम गेटिंग इट इन दिस केस. तो तुम क्या करोगे? हाँ सर, साइन थीटा को कैसे लिखोगे? तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए? सर पहले केस के लिए अगर तुम्हें चाहिए
मैक्सिमा का फॉर्मूला, फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा एंड फॉर्मेशन ऑफ मिनिमा के लिए स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, तो कहने से साइन थीटा अगर 2n plus 1 lambda, I get it? 2n plus 1 स्टूडेंट्स lambda, ये सॉरी कैपिटल डी ऊपर आएगा स्टूडेंट्स, कैपिटल डी बाई 2d अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टर। लेकिन अगर तुम्हें साइन थीटा I get it इज इक्वल टू n lambda कैपिटल डी बाई डी होगा तो मिनिमम। यानी स्टूडेंट्स दोनों फॉर्मूला इंटरचेंज हो गए। अगर ध्यान से तुम्हें मालूम होगा स्टूडेंट, तो हमें जो n लैम्बडा इंटरफेरेंस में क्या मिल रहा था? कंस्ट्रक्टिव के लिए, वही n लैम्बडा डिवाइडेड यहाँ पे किसके लिए मिल रहा है? मिनिमा के लिए। यहाँ पे 2n plus 1 lambda d by 2d किसके लिए मिल रहा है? मैक्सिमा के लिए। So formation of maxima and minima are alternately placed due to what? Due to the diffraction which is taking place at the edges and corners. The reason is we have tried to see to it that the aperture is either divided into even number of parts or odd number of parts. अगर even number of parts होगा तो हमेशा हमें minimum मिलेगा, odd number of parts होगा तो हमें maximum मिलेगा. Is this clear to all of you? Yes, sir. Can you repeat that last part what you said? I said it. ध्यान से सुनना. अगर तुमने ये पूरे स्लिट को दो पार्ट में डिवाइड किया इवन पार्ट्स में तो हमेशा मुझे मिनिमम मिलेगा। अभी तुम पूछोगे क्यों? तो तुम बोलोगे सर यहाँ से जो वेव फॉर्म आ रहा है और यहाँ से जो वेव फॉर्म आएगा इनके बीच में शायद हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल सकता है। लेकिन अगर मैंने मेरा स्लिट को, ध्यान से सुना, अगर मैंने मेरा स्लिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, अजम्पशन लिया कि मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया स्टूडेंट्स, तो पहले और दूसरे केस में शायद डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, लेकिन जो इंटेंसिटी तीसरे के लिए होगी वो तो वहां पे पहुंचेगी, उससे तुम्हें ब्राइटनेस मिलती है। तभी जाके देखो ना स्टूडेंट्स, जैसे जैसे तुम सेंटर से दूर जाओगे देखो ब्राइटनेस कम होती जा रही है, ब्राइटनेस कम होती जा रही है। यानी ये था, सपोज अगर वापस मैं 4 पार्ट्स में देता हूँ स्टूडेंट्स, मैं ये स्लिट को अज्यूम करता हूँ कि मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो पहले 2 पार्ट का डिस्ट्रक्टिव आ रहा है, थर्ड और फोर्थ में भी डिस्ट्रक्टिव आ रहा है। लेकिन अगर मेरा 5th पार्ट होता ना तो लाइट 5th पार्ट के हिसाब से जाके वहां पे स्ट्राइक होती और उससे तुम्हें थोड़ा सा इंटेंसिटी दिखाई देती। तो स्टूडेंट्स व्हेन यू स्पीक अबाउट डाइफ्रैक्शन, तो वी हैव टू सिंपली स्पीक अबाउट द अपर्चर, कि हाउ एग्जैक्टली द अपर्चर इज मेड टू बी स्प्लिटेड इनटू। तो अपर्चर को यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि अगर मैं अपर्चर को अज्यूम करता हूं टू बी डिवाइडेड इनटू इवन नंबर ऑफ पार्ट्स, आई एम गोइंग टू गेट मिनिमा, बट इफ आई हैपन टू गो फॉर ऑड नंबर ऑफ पार्ट्स, आई एम गोइंग टू गेट मैक्सिमा। यहाँ पे, वहां पे तुम्हें क्या मिल रहा था? y is equal to n lambda capital divide d, यहाँ पे तुम्हें sin थीटा में मिलेगा स्टूडेंट्स। तो देखो what is the formula for maxima? Sin theta is 2n plus 1 lambda d by 2d. What is the formula for minima? Sin theta is equal to n lambda d by d. थीटा क्या है सर? थीटा इज अ डाइफ्रैक्टिंग एंगल, ये भी डाइफ्रैक्टिंग एंगल है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखना, क्या ये एंगल भी थीटा है? हाँ सर। क्या is this point very close to this point? Yes. I can call this as the distance what? This is the distance of the second minima from central. Can I say tan theta is equal to opposite upon adjacent? Why not? Is this theta very large or very small? Very small. So can I say tan theta nearly equal to sin theta, and tan theta sin theta can be equal to what? Opposite. That is y upon adjacent is d. What is the distance between these two? Slit and the screen, capital D. Is this lens placed very close to the slit? Yes. So can I write on instead of D, can I write on small f? What is that? Focal length of the lens. स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ये जो लेंस है ना, मैंने स्लिट के बहुत नजदीक रखा। तो अगर मैं बोलूं डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लिट इज कैपिटल डी, क्या मैं इन दोनों के डिस्टेंस स्मॉल एफ भी लिख सकता हूँ? क्यों नहीं? अगर ये तुम्हें थीटा मिला स्टूडेंट्स, तो क्या ये भी तुम्हें थीटा मिलेगा? क्या ये भी तुम्हें थीटा मिलेगा? अरे हाँ सर, ये भी तो थीटा मिलेगा। तो what exactly the angular width? What exactly the angular width of angular width between two positions? I can get angular width between central maxima also. ये भी distance मुझे मिल सकता है। ये होगा plus lambda by t, ये होगा minus lambda by a. What exactly the central width? 2 lambda by a मिल जाएगा। Simple mathematical questions can be asked.
Is this clear to all of you all? Yes. So students, whenever you are trying to learn this part of it, see to it that you first complete your interference part of it. Diffraction के लिए सिर्फ ये ध्यान में रखना students, formulas दोनों का interchange होता है. वहां पे तुम्हें distance of centrally bright, centrally dark से होता है. यहाँ पे तुम्हारा angle के हिसाब से students. और तुम geometrically भी जाओगे ना students तो easily तुम्हें मिलेगा. ये थीटा तो ये भी थीटा मिल जाएगा. ये diffracting angle है. सिर्फ तुम्हें ये सोचना है कि स्लिट को तुमने कैसे अज्यूम किया है. स्टूडेंट्स ये क्या मालूम है, ये फिजिसिस्ट का अजम्पशन है. जब भी उन्होंने पैटर्न देखा स्क्रीन के ऊपर तो उनको एक ब्राइट लाइट दिखाई दी, उसके बाद में डार्क दिखाई दिया. तो उसका रीजन उन्होंने कैसे दिया? उन्होंने ये दिया कि शायद वो स्लिट को अज्यूम किया है कि हमने डिवाइड किया इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. तो अगर 3 इक्वल पार्ट से किया है तो पहले पार्ट की स्लिट में से सेकंड पार्ट में से 2 वेव्स जाके वहां पे मिलते हैं तो शायद वो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म होता रहेगा. तभी जाके तीसरी के हिसाब से लाइट पहुंच रही है वहां पे, तभी वो थोड़ा सा ब्राइटनेस दिखा रहा है. लेकिन उसके बाद में वापस डार्क आ रहा है तो शायद वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा. उसके बाद में लाइट दिखा रहा है तो उसको मैं 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो लाइट इज कमिंग फ्रॉम द 5th पार्ट ऑफ इट. दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड. तो इंटरचेंज ऑफ फॉर्मूला को ध्यान में रखना. जब भी तुम डाइफ्रैक्शन में वर्ड मैक्सिमा आया, ब्राइट के लिए आया तो 2n+1 आया, लेकिन वही यही फॉर्मूला तुम्हारा n+1 या n-1 चला जाएगा. इंटरफेरेंस के लिए जाओगे तो यहाँ पे y आता है और वो डार्क के लिए चला जाता है. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. सर तो इसमें डार्क नहीं होता है. इसमें स्टूडेंट देखो ना, ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे इंटेंसिटी 0 हो गई है ना, ये देखो ना, ये तुम्हारा इंटेंसिटी कब है, सबसे सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ब्राइट होगा. उसके बाद देखो इंटेंसिटी कम हो रही है और कम हो रही है और फेड होते जाएगी. यानी सेंट्रल में सबसे ये डार्क पार्ट है, ये डार्कर रीजन है. लेकिन वो कर्व फॉर्म है. कर्व किस लिए है? साइन वेव के हिसाब से स्टूडेंट्स, साइनसॉइडल वेव साइन थीटा के हिसाब से तुम्हारा एक्सप्रेशन है. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. That's the end of your chapter students, that is wave optic. Okay, so please kindly go through it and revise your formulas also properly. Okay students? Yes. Chalo. Shall we wind up the session students? Yes. Okay.